जी जी, क्या कह रहे हैं? अजाब है, अजाब. So we were talking about let's take a recap. Oof. इसको अल्लाह ने सजा दी हुई है, मैं कुछ नहीं करता. So sunnah is of three kinds, right? Qawli, faili, and takriri. Okay. Sunnah is habitual practice, right? Okay. So I told you about its authenticity, right? How is it authentic and applicable with respect to Quran? I gave you an example in my recent video, which who has listened it up till now? Who has followed that video? So can you tell me that? There is an example of the ayah of Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says, As-sariqu wa-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Cut the hand of the thief, male and female. Okay. Now, yad is the word that implicates in Arabic from the nail till your arm. So, are we going to cut from here? Now, here comes hadith. Okay. What does hadith says? Okay. So, what does hadith says? That it is only the wrist that you're going to cut it. Right? And number two, hadith says, the Prophet Muhammad says, the verbal sunnah explain the first of these two words and restrict it to the mean just the thief that steals a quarter of dinar. So less than of a quarter of a dinar, if that is stolen, it's like 200, 300 rupees, for instance, right? If somebody steals less than that, you will not cut his hand. So anything that is meaningful, if somebody has picked up some scrap, you will not cut his hand, right? So now the hadith is restricting the meaning of Quran, which is in general, okay? And again, I told you an example that, for example, there is a maid working in your home. If he picks up some food or something like that, okay? Or there is, because of your negligence, for example, you have kept your golden ring in front of her in your house, and she is tempted because of your negligence. It is khayana. It is not theft. It is distrust that he or she has committed. It is not theft. You will not cut his hand, according to Imam Malik rahmatullah alayh. Right? So you see in the beauty and see the depth in the meaning. Understand? So Quran is sometimes generalized. We specify it from hadith. So that is how hadith is very important. We cannot nullify hadith and we cannot say that there is no need for hadith to work for us. Okay? Okay, Ji. So you can go through the other example yourself because we are very much hadith. I told you has two parts. Number one is sanad. Sanad is the chain from the narrator till the Prophet Muhammad Sallam. Okay. So it starts with the narrator and it ends with the Prophet Muhammad Sallam. Okay. Right. It is just a recap. Okay. So the next is hadith. We have given the example of Bukhari Sharif that there are 7, for example, narrator in the first hadith. Okay. Innamal a'malu bin niyat, which we have discussed it in the last lecture. Then there is according to acceptance and rejection. Hadith according to
This is the first type, okay? Accepting, for example, there is a verdict. Is it maqbool or mardud? Okay, so either the person, the specialist of hadith, he would give his verdict, it is maqbool, then it is acceptable. It may be ahad, it may be mutawatir, continuous, whatever may be its form. It may be sahih, it may be zaif. But when he says it is hadith, so the knowledge is established. And when it say mardud, vice versa. Okay. So we have talked about mutawatir, that in every generation there must be at least 70, for example, which your mind can compute that it is impossible that a knowledge is transferred from one generation to other generation, okay, with such an overwhelming majority. Your mind will give you the sign, will give you the hint that this is impossible. This is now, it is not a knowledge, because if there is a lying, there may be someone to challenge that. Okay, if for example overwhelming majority is narrating a hadith from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, that namaz is the pillar of Islam. So now, because of its continuity, the knowledge is established and nobody is there to challenge that hadith. Okay, and of course 70% can't say a lie. Okay, so it is technically very difficult to say that. That is why we say Quran is 100% in each of its word is mutawatir. There is not even a single ayah in Quran that is not mutawatir, not transmitted to other generation with an overwhelming majority, which is known as mutawatir. Okay. Oof. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And something less than mutawatir is ahad. Okay. So Khabre Wahid is an isolated report. Now I told you that most of ahadith are ahad. There are less ahadith that are mutawatir. Okay. And then we told you gharib. Now the classification according to the number of narration. Now the second one is according to the number of narration. Now the first one was according to the acceptance and rejection. Now number of narrators. Okay, इसका आखिर में मैं क्विज लूंगा. ओके, तो नंबर ऑफ नरेटर्स मैंने गरीब का क्या बताया था, कितने होने चाहिए? देयर इज देयर किसी भी जनरेशन में, इन एनी जनरेशन, अगर कहीं पर भी सिंगल नरेटर है ना, तो वो हदीस क्या हो जाएगी? गरीब. इसकी मैंने क्या मिसाल दी थी? स्लीपिंग ब्यूटीज. पिछली क्लास में मिसाल दी थी ना, बोलो ना. ये जो अभी हमने हदीस पढ़ी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसके बारे में मैंने बताया था. यस, यू नो दैट उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इज द ओनली नरेटर. लेकिन आफ्टर हिम in every generation it became mutawatir, but still it is gharib. Okay, it's hurting me, I don't know why. अजीज क्या होगा? लेस देन 4. कहीं पर भी हो जाएगी. अब थोड़ी सी उसके अंदर पावर है ना, कि नरेटर्स जो हैं, नंबर ऑफ नरेटर्स जो हैं वो 3 है. मिसाल के तौर पे आप भी एक बात कर रहे हैं, आप भी एक बात कर रहे हैं, आप भी. So there are 3 chains established due to the 3 narrators. It is coming from the 3 chains. It's hurting me a lot. Started now. Mashhoor.
वाकया याद आ गया मुझे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बहुत ज्यादा नफीस इंसान थे। आप मक्के की गलियों में नंगे पैर फिरा करते थे कि कहीं पे आप सल्लम का फुट स्टेप होगा, मैं उस पे पांव रख दूंगा जूते के साथ। ठीक है, कितना ऑनर था ना। तो एक दिन हदीस पढ़ा रहे थे, हर हदीस के लेक्चर में नया जोड़ा व्हाइट कलर का पहन के आते थे, जस्ट टू रिगार्ड दैट हदीस, यू नो द नॉलेज ऑफ हदीस। फिर एक दिन बैठे तो पढ़ा रहे हैं तो रंग मुतगैर हो रहा है। इज माई उर्दू हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड? यानी फेंट हो रहा है, कलर इज फेडिंग। while he was giving dars, his color was fading, okay, but he didn't stop. After, for example, an hour, when the dars of hadith was completed, he asked his disciple to see his back. When he unraveled his back, कमीज को ऊपर किया, तो बिच्छू था जो उनको कंटिन्यूअसली डस रहा था, बट उन्होंने अपना दर्स रिस्पेक्ट की वजह से नहीं छोड़ा। देखें, नॉलेज का ऑनर तो इस नॉलेज का इतना है ना कि मैं आपको, बस मेरे पास 2 घंटे हैं, आई कैन नॉट गिव, आई वुड हैव गिवन माय लाइफ टू यू, बट 2 घंटों में क्या करें। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वाज इन हिज सी वॉयज। मैं आपको इसकी क्रेडिबिलिटी बता रहा हूं, बिकॉज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द क्रेडिबिलिटी, आपको सारी जिंदगी यही लगेगा। आजकल तो इतने फितने आए हुए, अल्लाह माफ करे, हर बंदा कह रहे हदीस तो बस ऐसे ही है, हदीस पे अमल ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है ना सर आपको? ठीक है, हर बंदा अपने ही। आज मुझे मेरा भाई कहता है कि वो एक मुफ्ती साहब कह रहे थे, वीडियो सुना है कि औरत पे हज फर्ज नहीं है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, क्योंकि औरत के पास तो पैसे होते नहीं, मर्द के पास होते हैं। व्हाट एन एनोलॉजी इज दैट? ठीक है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने उसको कहा आप फिर ये बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया, ओ ये बंदा मेरे सामने ना आए, ठीक है ना, इसने हमें टीज डरा। असल में ये आप ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है ना। दे शुड हैव टेक, मतलब इस तरह तो नहीं करो यार। एडमिनिस्ट्रेशन में सारे होते बैठे होते हैं जिनका दिमाग होता ही नहीं है। आप शिफा में चले जाओ, पेशेंट ऐसे तड़प रहा होता है, यही मशीन उधर भी लगी हुई होती है, शिफा हॉस्पिटल में भी। बंदा कहते यार आप लोग घास, यार वो 24 आवर्स हैं, अब क्या करें, उसमें मजबूरी है। लेकिन ये तो इल्म के साथ खिलवाड़ है, ठीक है, पाप है इल्म के साथ, है कि नहीं? अच्छा, मैं क्या कह रहा था? सो इमाम बुखारी, आई वाज टॉकिंग अबाउट इमाम बुखारी सी वॉयज पे थे। बातें जैसे लंबा सफर होता है तो मैं और आप गपशप लगाते हैं, तो बंदे के साथ गपशप लगा रहे थे, ठीक है। तो इमाम बुखारी के मुंह से निकल गया कि मेरे पास 20,000 दिनार है। सो द पर्सन वाज अ थीफ, पायरेट, कजाक, ही वाज अ कजाक, ठीक है। तो ही केम एंड स्टार्ट शाउटिंग in the gathering that my 20,000 dinar are stolen. Did you see his trick? Okay. And then the captain of the ship ordered every single person to be, तलाशी को क्या कहेंगे? To be checked. Okay, to be investigated. तो जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, उनको चेक किया तो उनके पास भी नहीं थे. It was not with him as well. So the thief came afterward to Imam Bukhari and said, you lied to me that you had 20,000 dinars. He said, no, I had that money. But when you started shouting, I throw it into the water. Because जो नॉलेज को मैं सर्व कर रहा हूं हदीस की, अगर मेरी पर्सनैलिटी पे इतना सा भी धब्बा लग गया ना, तो वो नॉलेज मेरे से आगे फॉरवर्ड ही नहीं होगा. लुक एट एहतियात. आप देखें ना, एहतियात को क्या कहते हैं इंग्लिश में? केयरफुल एटीट्यूड.
लुक एट हिज केयरफुल एटीट्यूड। तो ये बड़ी एहतियात से ये इल्म बना है। हर हदीस को कोट करने से पहले आप वजू करके नमाज इस्तिखारा पढ़ते थे, ठीक है। आप जब पैदा हुए थे तो आपकी आईसाइट नहीं थी, राइट। तो क्या हुआ, मंजूर है खुदा हूँ, आज तो अल्लाह ही खैर करे, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, उनकी तो वालदा दुआएं करती थी उनके लिए ना, तो अल्लाह ने उनको ऐसी रोशनी अता फरमाई, ऐसी रोशनी अता फरमाई कि ही यूज्ड टू राइट अ हदीस इन द लाइट ऑफ मून, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मशहूर, नेक्स्ट इज मशहूर इज देन मशहूर हदीस इज हाँ नॉट लेस देन 4, नॉट लेस देन 4, तो नॉट लेस देन हो गया ना, ओके। इन एवरी जनरेशन इट शुड बी, तो ये मशहूर हदीस है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कुनूत नाजिला का बोला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीचर्स को भेजा, 70 प्रीचर्स को, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ज़कवान एंड राल, दोज वर दी कबीलास, कबीले को क्या कहेंगे इंग्लिश में, ट्राइब्स, दोज वर दी ट्राइब्स, ओके। उनकी रिक्वेस्ट पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा, एंड दे किल्ड देम, एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो हार्ट ब्रोकन, फॉर 1 month ही दुआए कुनूत नाजिला पढ़ते थे। He used to pray for them, Allahumma dammir diyarahum, अल्लाह इनको हलाक कर दे, वो अहलिकहुम का हिलाक आदिन व समूद, इस तरह हलाक कर जैसे आद व समूद को हलाक किए। इतना पेन हो गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर जिब्रील अलैहि सलाम आए, तो ये हदीस मशहूर है, ओके। नाउ द एंड ऑफ द चेन, end of the chain, what is the end of the chain, it is the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is the end and the beginning is, I told you, the narrator, okay. So marfu hadith, Ibn Salah says marfu Arabic word refers to the narrator attributed specifically to the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, अक्सर सुना होगा आपने, right। so मरफू इसके बारे में और भी बहुत सी डिटेल है, बट आप ये याद रख लो, ठीक है ना। और मरफुआत इन तफसीर, सिमिलरली द तफसीर ऑफ द, ये बस इसको छोड़ दें, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज मौकूफ, कोई भी हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हो जाए, इट इज द नरेशन फ्रॉम द सहाबा इन टर्म्स ऑफ देयर सेइंग एंड एक्शंस, ओके। सो नरेटेड बाय सहाबा directly without mentioning the name of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay. The narration from the companion only, that is his own statement. Bukhari reports in Sahih Kitab al-Faraiz that Abu Bakr, Ibn Abbas and Ibn Zubair said the grandfather is treated like a father, okay. Although it is said by the Abu Bakr Siddiq, but it is again वो कि उनके नाम से है, लेकिन उन्होंने भी तो किसी से सुनी है ना, बट सिर्फ नाम मेंशन नहीं किया, अबू बकर का नाम मेंशन कर दिया, है तो वो हदीस ना। एंड द नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स आफ्टर सहाबा हु वर देयर, ताबईन, डू यू नो द नेम ऑफ ताबईन, ताबईन एंड तबा ताबईन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, सबसे खूबसूरत मेरा ज़बान है, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद जो आएंगे, उसके बाद जो आएंगे, ठीक है। तो ये 3 जनरेशन है जिनका स्पेशली नाम लेकर बोला है, ठीक है। और बड़े बड़े उलूम इन्हीं 3 जनरेशन के अंदर कंप्लीट हो गए थे, हदीस का इल्म भी इसमें कंप्लीट हो गया था, कुरान की कंपाइलेशन का भी हो गया था, फिक्र से रिलेटेड जो 4 मज़ाहिब हैं वो भी कंप्लीट, उनकी एक पिक्चर हमें नजर आती है। तो बड़े बड़े उलूम जो है ना इस जनरेशन में कंप्लीट हो गए थे, राइट। इट इज द सेम एज मुनक़ते,
इट इज नॉट एज सेम एज मुनक़ते। ठीक है, मुनक़ते का क्या मतलब होता है? टूटा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है। इट इज दैट हुज चेन स्टॉप्स एट ताबे। अब क्या है, इसको असर भी कहते हैं, मकतू को और मौकूफ को असर भी कहते हैं, हदीस भी कहते हैं, असर भी कहते हैं। लिख लो। मरफू तो डायरेक्ट आप सल्लम से होगी, तो बाजुकात मौकूफ और मकतू जो हदीस, उनको असर भी कहते हैं और कभी कभी हदीस भी कह देते हैं। ठीक है, बहरहाल ये एज ए नॉलेज इस्टेब्लिश नहीं होता, इसमें इख्तलाफ है। ओके, मखतूम है कि ये तो बहुत ज्यादा, अब एक सहाबी को भी तुमने छोड़ दिया, अब तुम तबा ताबई से ले रहे हो, ताबी से ले रहे हो, तो ये थोड़ा सा गैप थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस पे इख्तलाफ है, बहरहाल ये वीक सोर्स ऑफ नॉलेज है। राइट, the authenticity of each of the above three hadiths depends on their factors such as reliability of its reporter। फिर हम जरा इन्वेस्टिगेशन जरा लंबी ओपन कर देते हैं। ठीक है, सो सही का बता दिया, तो सही हदीस कौन सी है? बस सारी जिंदगी ऐसे ऐसे ही करते रहे। तो मेरा बेटा मुझे है, अबू आपका वजन कम हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? कहते हैं बस आपने एक एक्सरसाइज करनी है। मैंने कहा वो क्या करनी है? कहते हैं जब भी आपको कोई दावत के लिए बुलाए ना, आपने ऐसे करना है, नहीं जाना। ये एक्सरसाइज करेंगे ना, आपका वजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी ये एक्सरसाइज मुझे लगता है ज्यादा कर रहे हैं। बताया तो था आपको सही हदीस। इट इज मेड अप ऑफ रिपोर्टर्स ऑफ ट्रस्ट वर्दी मेमोरी फ्रॉम सिमिलर अथॉरिटीज। तो हमारे जैसे अगर थक्कड़ भुलक्कड़ लोग होते, तो हदीस का इल्म उधर ही फौत हो जाता, क्योंकि इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मेमोरी ऑफ द रावी। सो दोज हु हैड एक्सीलेंट मेमोरीज। कैसे पता लगता था? मैं आता हूं आपसे, आपसे हदीस सुनता हूं, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ठीक है, ये बंदा आता है आपसे सुनते हैं, तो आप कहते हैं फ़इन्नमल आमालु बिन्नियात। थोड़ा सा अब मैं, हम दोनों आपस में मिलते हैं, मैं कहता हूँ यार मुझे उसने इन्नमल आमाल बोले, आपको बोलता है फ़इन्नमल आमालु बिन्नियात। अच्छा, इसका तो हाफजा कमजोर है। पकड़ा गया। बड़े टेक्निकल इल्म है। मैंने आपको बताया है कि इस पे बुक्स लिखी हुई हैं अंडर द टाइटल ऑफ अस्मा और रिजाल। बाकायदा एक एक रावी के घर के क्या हालात थे, उसकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी थी, उसने कहीं झूठ तो नहीं बोला। राइट, अच्छा, विच इज फाउंड टू बी फ्री फ्रॉम एनी इरेगुलरिटी। ठीक है, इरेगुलरिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा शागिर्द है, ठीक है, ये एक हदीस, या ये मेरे से जूनियर है, मैं इससे सीनियर हूं, ये एक हदीस बयान करता है, ठीक है, मैं एक और हदीस बयान करता हूं, और वो दोनों जाके क्लैश कर जाती है मीनिंग में और वर्ड्स में, और वो बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग दे रही होती है। तो आप किसका कॉल एक्सेप्ट करोगे? सीनियर का करोगे ना। इरेगुलरिटी है, हम कहेंगे इसकी हदीस में इरेगुलरिटी है, इसको कहते हैं हदीस शाज हो गई है। लिखो, हदीस शीन अलिफ जाल हो गई है, शाज। ठीक है, इसी तरह इल्लत है हदीस के अंदर। ठीक है, इल्लत है हदीस के अंदर। अब इल्लत क्या है? जो वर्ड यूज किया गया है अरेबिक का, वो बहुत ही वीक है। सेंटेंस के अंदर जो अरेबिक का वर्ड यूज किया गया है, दैट इज नॉट delegated to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he was very baligh. His language was excellent. ओके, तो हमें पता लग जाएगा ना, ये हदीस नहीं हो सकती। और इसके लिए फिर बहुत हाई लेवल के स्पेशलिस्ट लोग होते थे। ठीक है, आजकल के दौर में तो है ही नहीं। उस दौर में जबान पे उबूर रखने वाले, उनको ये पता होता था कि जो प्योर अरबिक है वो है क्या।
आपको पता है आप सल्लम 3 साल के लिए, 3 साल के लिए कि कितने साल के लिए बीबी हलीमा सादिया के पास थे? वो क्यों भेजा था? क्योंकि मक्का में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो थोड़ी स्लैंग हो गई थी। शहरों में स्लैंग होती है ना। मेरी उर्दू का हाल देखें, कभी इंग्लिश बोल रहा हूँ कभी उर्दू बोल रहा हूँ, अल्लाह माफ करे। ठीक है, तो मेरी उर्दू भी स्लैंग है, इंग्लिश भी मेरी स्लैंग है। ठीक है, तो आप अगर गांव में जाएंगे तो आपको प्योर लैंग्वेज मिलेगी। ठीक है, तो एक वजह ये भी थी कि वहां पे प्योर खुराक थी, दूसरी वजह ये थी कि लैंग्वेज भी बड़ी प्योर थी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि फ्री फ्रॉम इरेगुलरिटीज में दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं? हम्म, बोलो वरना मैं कुछ कर जाऊंगा, गोली मार दूंगा अपने आप को। बोलो, दो मैंने क्या बताया? एक इल्लत नहीं होनी चाहिए उसके अंदर इरेगुलरिटी में, और दूसरी शाज शुजूज मिन गैर शुजूज वला इल्ला। अब आप आ गए हैं अहाद हदीस के अंदर। ठीक है, जहां पे एक एक चेन को चेक किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये हदीस सबसे नंबर ऑफ नरेटर के हवाले से ये गरीब भी हो सकती है। हमने नंबर ऑफ नरेटर में पढ़ा था ना, 3 है, गरीब, अजीज और मशहूर, पढ़ा था ना। तो ये गरीब भी हो सकती है, लेकिन हम चेक करेंगे ना। इन्वेस्टिगेशन एक 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 लड़ी की हो रही है। अंडरस्टैंड, इट इज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुली मैनर्ड। इसको क्या कहते हैं? साइंसेस ऑफ हदीस, उलूमुल हदीस। और गोल्डन इस्नाद का मैंने बताया था वो क्या होता था? 3 to 4 कोशिश होती थी इसी के अंदर 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 आप सल्लम से सिलसिला जुड़ जाए। तो जितने वास्ते कम होंगे उतनी हदीस जो है वो ठीक है। तो इमाम मालिक के बारे में क्या लिखा हुआ है कि when he started the number were 10,000 until he reduced them to their present number of few than 2,000। 2,000 पे आ गए तो वो क्या करते थे? हर साल रिफाइन करते थे अपनी नॉलेज को, कोशिश करते थे नंबर ऑफ नरेटर्स कम से कम हो, कम से कम हो, कम से कम हो, रेपिटेशन ना हो हदीस के अंदर। ठीक है, एंड ही केम टू 20,000, 2,000 गोल्डन अहादीस फॉर एग्जाम्पल। यू लाइक इट? यू लाइक द नॉलेज? हसन क्या है? अब थोड़ा सा हाफजा वीक हो गया अगले बंदे का, लेकिन झूठा नहीं है, झूठ नहीं बोलता, गलत काम नहीं करता, फिस्क को फुजूर उसके अंदर नहीं है। ठीक है, अच्छा बंदा है, थोड़ा सा हाफजा वीक है, तो ये मतलब कोई ऐसा उसके अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि हम उससे हदीस नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हदीस हसन हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा समझ लो। हम्म, गहराई में फिर एक और बात आ गई। हदीस हसन दो किस्म की होती हैं। एक ये हसन लिजाती ही हो गई, लिखो हसन लिजाती ही, ली लाम जाल अलिफ ते है, लिजाती ही। एक बंदे का हाफजा कमजोर है, हसन लिजात जाती ही। ठीक है, तेरा दोस्त है उसका भी हाफजा कमजोर है, फॉर एग्जाम्पल हसन लिजाती ही। ठीक है, तुम भी वही हदीस कोट कर रहे हो, वो भी ये हदीस कोट कर रहे हैं, उसके अल्फाज डिफरेंट हैं, तुम्हारे अल्फाज डिफरेंट हैं, लेकिन तुम दोनों का करेक्टर ठीक है। अब तुम दोनों की जो हदीसें हैं वो एक ही मैटर पे होंगी ना। चेन डिफरेंट है, हदीस एक ही तुम सुना रहे हो, तो तुम दोनों की हदीसें हसन लिगैरी ही हो जाएंगी। नहीं समझ में आई? दोबारा बताऊं? समझ में आई? हम्म, एक हदीस आप नरेट करते हैं, ठीक है, आपका भी हाफजा कमजोर है। एक नरी वही हदीस ये नरेट करती है, इसका भी हाफजा थोड़ा सा कमजोर है। एक हदीस वो नरेट कर रहे हैं, तीनों का हाफजा कमजोर है, और तीनों का जो चेन है वो भी डिफरेंट है। एक रावी से नहीं लिया, एक नरेटर से नहीं, डिफरेंट नरेटर्स हैं, लेकिन जो मैटर है, जो मतन है वो सेम है।
अब इन तीनों की हदीसें जो है ना वो हसन लिगैरी ही हो जाएंगी, सपोर्ट कर रही है ना। आपस में तीन चेन्स हैं जो कि हसन हैं, दे आर नॉट सही, बट तीनों तीन है ना, उनमें पावर आ गई ना, तो अभी हसन लिगैरी ही हो गई तीन, और ये तीनों मिलके फिर हसन से हदीस जो है वो सही हो जाएगी। अंडरस्टैंड, समझ आ गई। तो इसके लिए जो अल्फाज जो हदीस की बुक्स में यूज होते हैं इस किस्म के नरेटर के लिए, वो होते हैं ला बअस बिही, कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है ना जी। लैस बिही बअस, तयक्कुनन यकीनन, ये वैसे सुन लें, ठीक है। सुदूक, सच्चा बंदा है, ठीक है। लहू अवहाम, लेकिन थोड़ा सा उसके दिमाग में वहम शहम बड़ा है ना, तभी तो वो भूल रहा है ना। समझ आ गई, ओके। प्रॉफिट तो वो क्या कहते हैं कि अब इसमें ये जो है ना, यहया इब्ने सईद, यहया इब्ने सईद अपने ग्रैंडफादर से सुनता है कि अब ये यहया इब्ने सईद जो है ना, ये ही इज द वन जो थोड़ा सा भूलता है, ठीक है। इट इज बिलीव फॉर अ मैन to attribute himself to someone other than his father knowingly, or to deny his connection to his father even subtly, ठीक है ना, सबटली का क्या होगा, यानी आप अपना शजरा नसब चेंज नहीं कर सकते ना, ये गुनाह है। तो नोइंगली या अननोइंगली अगर कोई ये बंदा करता है तो इसको मेरा ख्याल है गलती से भी आप नहीं कर सकते। तो अपना शजरा नसब नसब आप चेंज नहीं कर सकते। आई एम नॉट हिज सन और हिज, और मतलब अपनी माँ और बाप से रिश्ता आप तोड़ नहीं सकते। तो ये हदीस है, लेकिन मैंने आपको क्या समझा है, ये हदीस हसन है। क्यों है? क्योंकि याहया इब्ने सईद जो थे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ मेमोरी था। ओके, थक गए, दिमाग पे जोर ज्यादा है। रूलिंग क्या है हदीस हसन की? रूलिंग अब जो सही हदीस की रूलिंग ये है, रूलिंग क्या होती है, रूलिंग क्या होती है, रूलिंग क्या होती है पुत्र? सही हदीस, अब हम उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं? यस कर सकते हैं। हम उसको अहकाम में भी, ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हदीस हसन जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। सुनो, इट्स रूलिंग इज द सेम एज हदीस सही in evidence, even if it is lesser than sahih in strength. For this reason it is considered as a proof with the scholars, and they act upon it. Likewise, the vast majority of the hadith scholars consider it to be a proof, except a few, कुछ लोग बहुत सख्त थे, ठीक है। इंजंक्शंस बनाते हुए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो मजहब था वो मुतवातिर हदीस के अलावा कोई लेते ही नहीं थे। हम तो अहाद की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो मुतवातिर हदीस के अलावा कोई नहीं लेते थे। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, यानी जो हमारा स्टेट रिलीजन है, ठीक है, उनसे अक्सर लोगों को गिला है साहब, जो उनके प्रेडिसेसर्स थे ना, कि यार ये हदीस को जो है ना वो कर देता है, रद्द कर देता है। उनका मजहब ये था कि वो कंटिन्यूअस हदीस को लेते थे वरना नहीं लेते थे। मैंने आपको पहले बताया था ना कि उनका जिस तरह के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो सही हदीस कोट करते थे, उसमें एक शर्त ये भी थी कि जो दो रावी हैं चेन के अंदर, विद इन द वन चेन, उनकी आपस में जिंदगी में मुलाकात का होना भी साबित होना चाहिए, वरना वो नहीं लिखते थे हदीस। अमेजिंग है ना? यू लाइक दिस नॉलेज? थैंक्स गॉड, आई सेव्ड few people, few pupils of mine. सो अगर आपको समझ आ गया और हदीस को आप समझ गए, तो यूं समझ लें कि दुनिया में मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, कुछ तो मैंने फायदा पहुंचाया। ठीक है, ज़ईफ क्या है? अब ज़ईफ के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गई जी।
नहीं, इसका रेफरेंस पुराना हो गया शायद। आप मुझे, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, लेकिन बंदा झूठ बोलता है, करेक्टर ठीक नहीं है। शायद झूठ ना बोला हो, हदीस उसने सही बयान की हो, उसका अपना करेक्टर ठीक नहीं है, नाप तोल में कमी करता है, प्योरिटी का ख्याल नहीं रखता, कपड़े गंदे रहते हैं। इससे हदीस तो नहीं लेंगे, ठीक है। हदीस तो बहुत खास इल्म है, तो जब तक पर्सनैलिटी में थोड़ा सा भी फ्लॉ होगा, उससे हदीस नहीं ली जाएगी। अंडरस्टैंड? बस यहां तक काफी है आपके लिए। इसमें फिर मुअल्लक भी है, मुअदल भी है, एंड, लेकिन आपके लिए यहां पर भी है। आखिर में आ जाती है मौजू हदीस। कौन सी हदीस? और ज़ईफ हदीस पे क्या वर्डिक्ट है, प्रूफ क्या है उसका, उसके ऊपर वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट ये है कि वो आप सिर्फ फजाइल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो आप सिर्फ एट्रीब्यूट्स ऑफ जन्ना, एट्रीब्यूट्स ऑफ नार, ठीक है, सवाब, अजर, ठीक है, अजाब, ये सारी जो अहदीस हैं अक्सर ये ज़ईफ अहदीस होती हैं, लेकिन आप इंजंक्शंस में इसको यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास में हूँ। मैं लेट आऊंगा आज, बहुत लेट। मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज हूँ। हम्म। बस भेज दो ना, भेज दो। आज मैं लड़ाई करके आया हूं। इसको कहते हैं नूरा कुश्ती। ये ऐसी लगती है लड़ाई है, लेकिन ये होती नहीं है, ठीक है। तो जब अक्सर मियाँ बीवी जो है ना, वो सिर्फ बस ऐसे ना, नूरा कुश्ती क्या होती है, ओए ओए करके डोले दिखाते हैं और बस खत्म हो जाती है लड़ाई। बस इधर इतना ही होता है बस इसके अंदर, ठीक है। ये आखिरी सुन लो मेरे पुत्रों। हम्म। आखिरी क्या है? मौजू हदीस यानी साबित हो चुका है कि ये हदीस झूठी है, ये बंदा भी झूठा है। इसने अपनी सियासी मीन्स के लिए, फॉर फ्लरिशमेंट ऑफ हिज बिजनेस, फॉर हिज पॉलिटिकल गेन्स, फॉर हिज सोशल गेन्स, फॉर applying some or giving some attributes to his for example tribe, ठीक है, उनकी जरा तारीफ शारीफ करने के लिए। अब जिसने हिंदवाड़े का ठेला लगाया हुआ है, वो सामने लिख देता था कि हिंदवाड़ा जो है वो जन्नत का फल है, जो इसको खाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। अब लोग लट्टू की तरह आके हिंदवाड़े खरीदने शुरू। तो क्या है, लोगों ने इसको बुरे मीन्स के लिए भी यूज किया है हदीस के लिए। मजे की बात यह है कि जितनी मौजू और हदीसें हैं फैब्रिकेटेड, मौजू के सामने लिखो फैब्रिकेटेड, लिखो। मौजू क्या कहते हैं? फैब्रिकेटेड। लेट मी टेल यू कि फैब्रिकेटेड हदीस के ऊपर भी बुक्स कंपाइल हो चुकी थी, और जितने झूठे रावी थे, नरेटर्स हु वर द कज़ाब एंड दज्जाल, their names are also written and their history is also written, कि उन्होंने झूठ कहां बोला था, वो भी सारा इल्म मौजूद है अस्मा और रिजाल की कुतुब में, ना मौजुआत की कुतुब में, सॉरी। इनकी जो बुक्स है उनका क्या नाम है? मौजुआत। अमेजिंग है कि नहीं है? एंड हियर माय लेक्चर एंड्स, थैंक यू फॉर। क्लैपिंग तो करो ना यार, मैंने